I'll start with a statement and then we can take questions at the end of the statement. In 65 years of democracy in independent India, this is only the second time the media is being censored. Which is the mic? ये माइक ले ऑन करो ओके सही In 65 years of democracy in independent India, this is only the second time the media is being censored without putting an official stamp of emergency. In the last 2 years, UPA-2 government has committed mistakes which have resulted in several questions in the minds of the general public. The results of UP Assembly elections and various by-elections are showing clear signs of that disquiet. The resolve to intimidate the media may result in further boomeranging of the situation. Yesterday, on 27th November 2012, two editors of Zee News Limited, Mr. Subir Chaudhary, editor Zee News, and Mr. Sameer Ahluwalia, editor Zee Business News, have been illegally arrested. Zee News Limited, which is a premium news network and running 8 channels, that is Zee News, Zee Business, Zee News UP Uttaranchal, Zee 24 Taas, Zee 24 Ghanta, Zee 24 Ghantalu, Zee Punjabi and Zee Chhattisgarh, and its journalists strongly condemn the illegal arrest of these two journalists and demand their immediate release. Zee News Limited has been raising a fundamental question that Mr. Naveen Jindal and his companies and affiliates have been prime accused by the CAG, a constitutional body mandated to be a watchdog for all governmental activities. Based on the CAG report, Mr. Naveen Jindal and his companies and affiliates are under investigation by the CBI. It is only due to his legal drafting and for purposes of charade that Mr. Naveen Jindal, who is a public servant due to being member of parliament, is using the names of his employees and the companies owned by him, not only in this case, but in many other cases. The ultimate object has been to collude with licensing authorities to amass undue financial gains. According to the CAG report, out of 155 coal blocks allocated, there were 22 coal blocks allocated to this group and its affiliates. It may sound as if only 15% of coal blocks are allocated, but in reality, the quantity of coal blocks allocated is 25% of the total quantity, and the loss to the exchequer, or in other words, benefit given to Mr. Naveen Jindal and his group and affiliates is approximately Rs 45,000 crores. Dear friends, this address by Zee News Group to you is as a media company and fellow media professionals. You are part of the media, whether online, print or television. Zee Group is also present in all these three mediums, but we do not expect that being from the same fraternity, you should not ask questions, whatever comes to your mind to question our statement. It may not be out of context to mention that the publisher of Zee News Limited and Mr. Naveen Jindal's family have got family relationships for past 4 generations. Zee News Limited, through its various channels, including group company DNA, which is a newspaper, has published more than 268 fair and balanced stories on Mr. Naveen Jindal and his companies in the past. Can somebody ask him a question that when the earlier stories were being published, was any money exchanged for doing so? The answer is self-evident. It is only on account of his ingenious arrogance that when the Zee Group published stories based on the CAG report, which were against him, in order to prevent publishing, he, with collateral motives, alleged that he had been asked to pay money. The fact of the matter is that Mr. Jindal is one who offered money, a clear bribe, first to the editors and then the company. He also tried to influence various senior functionaries in Zee News Limited, not only directly but also through various other people, including his eldest brother, Mr. Prithvi Jindal, Uncle Sri Sitaram Jindal, and some political interlocutors like Sri Digvijay Singh, General Secretary, Congress Party, Sri Raman Singh, Chief Minister, Chhattisgarh, Sri Arjun Munda, Chief Minister, Jharkhand, just to name a few. All of them requested not to publish stories against Mr. Naveen Jindal. Eventually, Mr. Jawahar Goyal,
one of the owners, shareholders of Zee Group, was called by the mother of Mr. Naveen Jindal, Srimati Savitri Jindal, at 6 Prithviraj Road, New Delhi, where Srimati Savitri Jindal, Mr. Naveen Jindal, and Mr. Ratan Jindal were present. Irrespective of the facts of the Colgate case, Srimati Savitri Jindal put emotional pressure on Mr. Jawahar Goyal, citing relationship of 4 generations, and requested him that Zee News and Zee Business should stop broadcasting any matter against Mr. Naveen Jindal and his companies. Coming under emotional pressure, Mr. Jawahar Goyal requested the editors of Zee News and Zee Business to stop further broadcasting of these stories and have a meeting with Mr. Naveen Jindal to listen to his version of the issue. Accordingly, further broadcasts were stopped with immediate effect, and the editorial team of Zee News Limited started interacting with Mr. Naveen Jindal's officials to take their point of view. Between September 14th to September 23rd, 2012, there was no publication broadcasting from Zee News or Zee Business on Mr. Naveen Jindal or his companies, and Zee News team tried their best for fact-finding during this period. However, instead of answering the queries raised by Zee News team, Mr. Naveen Jindal decided to file an FIR against Zee News Limited, its officials and editors on October 2, 2012. This charade of sitting over detailed questionnaires and then using legal technicalities, frivolous I must add, to deny us any answers continues even today. Zee News has no hesitation to mention that in front of all of you media colleagues, the various kinds of pressures were exerted on the people related to Zee Group to stop its exposure of Colgate scam. The filing of FIR by Mr. Naveen Jindal on 2nd October 2012 is one such act of political pressure, and it was based on a purported CD of 14 minutes, which, if some of you have heard, will lead to the belief that Mr. Sudhir Chaudhary and Mr. Sandeep Ahluwalia were trying to extort money. We have never denied a conversation, and therefore a CFSL forensic report confirming the CD's veracity was a foregone conclusion. So why they rest when both of them were fully cooperating with the investigation since the very beginning, including yesterday? The fact is that in the anxiety to expose Mr. Naveen Jindal and his group beyond what they had been doing, they had a half a dozen meetings and a total conversation of close to 5 to 6 hours. If you, me, or anyone were to take out 5% of this conversation out of an entire body of meetings, it can be distorted in any manner. Indeed, the conversations happen in different contexts and at different times. Delhi Police Crime Branch is to be sympathized because they know very clearly that there cannot be any case of extortion. Police are being forced to pursue the matter and illegally arrest both Mr. Sudhir Chaudhary and Mr. Sabir Ahmed. Thank you for your attention. We appreciate your presence and willingness to see the nefarious game plan going on to bury the crime accused in Colgate. हिंदी में कह रहे हैं। हिंदी में यही बात आपने कही। आपको हिंदी की स्टेटमेंट भिजवा देंगे क्योंकि उसको पढ़ लीजिए, जो रीड इट इन हिंदी और ट्रांसलेट कर दिया आप पढ़ा लो, इसी को पढ़ लीजिए हिंदी में। हाँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ट्राई टू ट्रांसलेट। अच्छा, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने, क्योंकि हिंदी का स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, तो हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है इससे जाए, क्योंकि अभी हाँ, जब तक ट्रांसलेशन नहीं मिल जाती। ठीक है, 65 साल की हमारी आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी में, ये दूसरी बार सिर्फ हुआ है कि मीडिया का एक सेंसरशिप किया गया है, और इस बार ही इमरजेंसी का कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं है। पिछले 2 साल में यूपीए 2 गवर्नमेंट ने कई मिस्टेक्स किए हैं, और जिससे कि बहुत सारे सवाल उठे हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक से। लास्ट इलेक्शन जो यूपी असेंबली के इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन हुए, उसे ये बात निकल के आ रही है कि पब्लिक में एक डिस्क्वाइट है। इसलिए किसी ने ठान लिया है कि मीडिया को इंटिमिडेट किया जाए और उससे सिचुएशन को डिफ्लेक्ट किया जाए। कल 27 नवंबर 2012 को हमारे 2 एडिटर, जी न्यूज के श्री सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के श्री समीर आलूवालिया को अरेस्ट कर लिया गया,
जी न्यूज लिमिटेड जो कि एक प्रीमियम न्यूज नेटवर्क है, और हमारे 8 चैनल्स हैं, जी न्यूज, जी बिजनेस, जी न्यूज यूपी उत्तराखंड, जी 24 तास, जी 24 घंटा, जी 24 घंटालू, जी पंजाबी और जी छत्तीसगढ़। और हमारे सारे ही जर्नलिस्ट स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ये जो अरेस्ट है, ये इलीगल है, और इन दोनों जर्नलिस्ट को तुरंत रिहा कर दिया गया। जी न्यूज लिमिटेड एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछा जा रहा है मिस्टर नवीन जिंदल से और उनकी कंपनीज और सहयोगी कंपनियों से, जो कि सीएजी रिपोर्ट में प्राइम एक्यूज है, और सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस सीएजी रिपोर्ट के तहत मिस्टर नवीन जिंदल, उनकी कंपनियां और सहकारी कंपनियां सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं, और उनकी इलीगल क्राफ्टिंग की वजह से एक शरायत किया जा रहा है नवीन जिंदल की तरफ से, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और अपने कंपनियों के अलग ऑफिशियल्स के नेम लेकर वो उनको सामने पेश कर रहे हैं। उनका आखिरी मकसद यही है कि सबसे मिलकर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलकर बहुत सारा पैसा जमा किया जाए और फाइनेंशियल गेन्स लिए जाए। सीएजी रिपोर्ट में के मुताबिक 155 कोल ब्लॉक्स जो एलोकेट हुए, उसमें से 22 कोल ब्लॉक्स नवीन जिंदल की कुछ कंपनीज और एफिलिएट्स को दिए गए। इससे लगता है कि सिर्फ 15% होंगे, लेकिन रियलिटी में ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द एलोकेशन हो जाता है। इससे हमारे एक्सचेकर को 45,000 करोड़ रुपए का लॉस है, या ये देखें तो मुनाफा नवीन जिंदल कंपनी को 45,000 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है, एड्रेस है जी न्यूज ग्रुप का, आप लोगों को, आप हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, फेलो मीडिया कंपनीज हैं, और आप भी पार्ट ऑफ मीडिया हैं, टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन वगैरह से। जी न्यूज, जी ग्रुप, इस तीनों में हम टीवी चैनल चलाते हैं, प्रिंट न्यूज़पेपर और ऑनलाइन भी करते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल हो वो लाजमी होंगे, और वो हम आंसर करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं वो आप बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जो पब्लिशर्स हैं जी न्यूज लिमिटेड के, और मिस्टर नवीन जिंदल और उनके परिवार के 4 जनरेशन से ताल्लुकात हैं। जी न्यूज लिमिटेड अपने वेरियस चैनल से और हमारे न्यूज़पेपर, सहयोगी न्यूज़पेपर डीएनए के थ्रू पास में 268 फेयर और बैलेंस स्टोरीज कर चुके हैं नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के बारे में। कोई मुझे जाके ये सवाल पूछे कि कभी किसी भी ये स्टोरी के लिए कोई पैसा दिया गया क्या? द आंसर इज सेल्फ एविडेंट, ये सबको पता है कि क्या सच्चाई है। जब ये वाला मामला उठा तो एक एरोगेंस के साथ हमारे अगेंस्ट अटैक किया गया, और सीएजी रिपोर्ट को की जब सच्चाई हम सामने लाई, तो क्योंकि ये सच्चाई नवीन जिंदल ग्रुप के अगेंस्ट थी, इसलिए उनने हमारे ऊपर सब तरीके से अटैक करना शुरू किया एंड एलेज किया कि हमने उनसे पैसा मंगाया। सच्चाई ये है कि पहले उन्होंने हमें पैसा ऑफर किया, मिस्टर जिंदल द वन हू ऑफर्ड मनी, अ क्लियर ब्राइब, पहले हमारे एडिटर्स को पर्सनली और फिर कंपनी को, और उनने हमारी कंपनी को और कई तरीके से और हमारे वेरियस ऑफिशियल्स को कई तरीके से प्रेशर डालना शुरू किया, इंक्लूडिंग मिस्टर नवीन जिंदल के बड़े भाई श्री पृथ्वी जिंदल, उनके अंकल श्री सीताराम जिंदल, और ऑल्सो पॉलिटिशियंस लाइक श्री दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, श्री रमन सिंह, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री अर्जुन मुंडा, चीफ मिनिस्टर झारखंड, और भी कई। ये सब सिर्फ यही हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि नवीन जिंदल के लिए स्टोरीज ना चलाएं। फिर मिस्टर जवाहर गोयल, जो हमारे कंपनी के को शेयर होल्डर हैं, उनको बुलाया गया श्रीमती सावित्री जिंदल के द्वारा, जो नवीन जिंदल की मां है, उनके घर पे 6 पृथ्वीराज रोड पर, जहां श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री नवीन जिंदल और श्री लखन जिंदल मौजूद थे। और ये बात हुई कि चाहे जो भी तथ्य हों कोलगेट स्कैम के, श्रीमती सावित्री जिंदल ने इमोशनल प्रेशर डाला जवाहर गोयल जी के ऊपर कि हमारी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और आप अपने चैनल्स पे हमारे अगेंस्ट ये मामला ना उठाएं। तो इस इमोशनल प्रेशर में मिस्टर जवाहर गोयल ने भी
हमारे एडिटर्स को रिक्वेस्ट किया कि आगे से ये कहानियां, ये स्टोरीज जो है मत जाने की, इनको रोक दें और नवीन जिंदल से उनका अपना वाकया मांगे। इसके बाद आगे के ब्रॉडकास्ट हमने बंद कर दिए थे और हमने नवीन जिंदल और उनके कंपनी ऑफिशियल से बातचीत करनी शुरू की कि उनके सारे क्लैरिफिकेशन लिए जाएं। सितंबर 14 और सितंबर 23 के बीच हमने कोई स्टोरी नहीं चलाई हमारे किसी भी चैनल पर, और उनकी टीम को हमने कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन हमारे जवाब देने के बजाय उनने 2 अक्टूबर 2012 को एक हमारे एडिटर्स और कंपनी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दी। ये जो सारा मामला है, जो शरेड है ऑफ सिटिंग ओवर आर डिटेल्ड क्वेश्चनर, हमने जो क्वेश्चनर उनको भेजा उनको कोई जवाब नहीं दिया है और लीगल टेक्निकलिटीज पे उसको वो सिर्फ स्कर्ट कर करते हैं, तो विद द रिजल्ट कि हमारे पास कोई उनकी तरफ से जवाब और फाइल नहीं आएगा। हमको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है आप सब मीडिया लोगों के सामने कि हमारे पर बहुत तरीके के प्रेशर डाले गए हैं एंड इसका मकसद एक ही है कि कोलगेट स्कैम के पीछे जिनका हाथ है वो रोक दिया जाए। जो एफआईआर लॉन्च की थी जो 2 अक्टूबर को नवीन जिंदल जी ने, इज वन सच एक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। इसमें एविडेंस दिया गया है एक सीडी जिसमें 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है और वो शायद आप लोगों ने देखी भी हुई है कि मिस्टर समीर चौधरी और मिस्टर समीर अहलूवालिया कोशिश कर रहे थे कि उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया जाए। हमने कभी इसको डिनाई नहीं किया है कि ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, और जो सीएफएसएल रिपोर्ट की कल बात हुई है हम मतलब वो आना लाजमी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि वो दोनों फुली कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। फैक्ट तो ये है कि कोलगेट स्कैम में मिस्टर नवीन जिंदल को एक्सपोज करने के लिए हमारे लोगों ने कई मीटिंग्स की और टोटल जो बातचीत हुई 5 से 6 घंटे की हुई। अगर हम कोई भी 5-6 घंटे की कन्वर्सेशन में से 5% अगर निकालें और उसको देखें तो कोई भी बात स्टार्ट की जा सकती है और हर बारी जो बातचीत हुई है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में हुई है, अलग दायरे में हुई है और अलग अलग टाइम पे हुई है। वो सारी चीजें साथ में हो तो एक अलग ही कहानी आएगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से हम सहानुभूति रखते हैं। उनको पता है कि क्लियरली कोई केस ऑफ एक्सटॉर्शन नहीं था। पुलिस भी क्वेश्चन में है कि इन दोनों को इलीगली अरेस्ट किया जाए, जिस वजह से कल अरेस्ट हुआ। मैं आप लोगों को सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए एंड अपने हमारे साथ ही आज। आपसे जानना चाहेंगे कि जो सीडी की बात सामने आ रही है उससे आप क्या कहेंगे? अदर पार्टी ने स्टिक किया था और उसमें फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आई उसमें भी कहा गया कि सीडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो फिर जब ऐसा मामला आया है कि मीडिया इस तरह से ऐसा मांग रहा है, छवि बनवा रही है, तो आप इसको आपातकाल से कैसे जोड़ रहे हैं, इमरजेंसी से कैसे जोड़ रहे हैं? आप मानते हैं अगर फॉरेंसिक लैब का कहना है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ये गलत? 5% का शुड आंसर मिस्टर आर के हांडू हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। देखिए, इसमें अगर आपने ये टेक्स्ट देखा है तो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट को, इसी में इसका टेक्स्ट है। सारी कन्वर्सेशन 5 से 6 घंटे की और 6 घंटे को आप अगर 14 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन फाइट इट इन एनी वे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट विल से दैट मैंने रिश्वत ली और नहीं बीच में से मैंने रिश्वत नहीं ली, नहीं को काट दो तो मैंने रिश्वत ली, वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यही बोलेगा। द क्वेश्चन इज वन। देखिए, ऑल राइट, लेट मी गो व्हाट यू आर सेइंग। आपका ये कहना है फॉरेंसिक, इफ आई हैव अंडरस्टूड इट राइटली, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अगर बोला है ये सही है तो क्या आप अपराध को कवर करना चाहते हैं? यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, अपराध डिटरमाइन करती है हुआ है नहीं हुआ कोर्ट, अदालत करती है। तो आज की तारीख में अदालत में ये सब जुडिस है और मेरे लिए या किसी के लिए कहना ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ ये गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, इश्यू इस वक्त ये है, आप जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ले लीजिए। एफआईआर 2 अक्टूबर की हुई है,
2 अक्टूबर से पहले ये लास्ट कन्वर्सेशन इनकी है, जो ये खुद कहते हैं 13 और 19 की, 19 सितंबर की। उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है 2 अक्टूबर को। देयर इज अ गैप ऑफ अबाउट 14 डेज। अकॉर्डिंग टू देम एफआईआर, अलॉन्ग विद एफआईआर दे हैव गिवन, उन्होंने जाके वो सीडीज दी हैं, वो गलत है, जैसे मैंने अभी बताया, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी। 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अगर ये लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो 27 अक्टूबर में क्या हुआ कि उनको अरेस्ट करने की जरूरत है, जब डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट इज बाय द कोर्ट। और लॉ ये कहता है कि अनलेस देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, अनलेस यू हैव टू गेट टू समथिंग, देयर शुड नॉट बी एन अरेस्ट। सो द पॉइंट विच दे आर ट्राइंग टू मेक, और जो यहां पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट में, कि कोई कनेक्शन नहीं है इस अरेस्ट के दौरान फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने अपराध क्या, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी, चार्जशीट आएगी। बट सवाल इस वक्त ये कि जब आपको ऑपरेट किया जाता है 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, और जब आप कह रहे हो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जाके बोला है कि हाँ जी ये सही है, फिर तो चार्जशीट आप फाइल कर लीजिए। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर दिल्ली पुलिस टू अरेस्ट एंड पनिश देम लाइक दैट, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नोटिस में मैं ये भी लाऊं, जो मैं यहां नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैंने इनके कल के प्रेस रिलीज में पढ़ा है। एक सूट, सिविल सूट फाइल किया गया दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में, और सिविल सूट में डैमेज मांगे हैं 200 करोड़ के। ऑन सेम मटीरियल द सिविल सूट वाज फाइल, और उस सूट में बॉम्बे हाई कोर्ट से आगार की गई, रिक्वेस्ट की गई कि इनको आप पब्लिशिंग ऑफ कोलगेट में बंद कर दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनको, क्योंकि इनकी ये थी कि हमारा वर्षन उन्होंने कहीं पे भी नहीं दिया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भाई आप जाके इनको वर्षन अपना दे दीजिए, उसका ये जवाब देंगे, और जब वो जवाब देंगे देन यू विल बी एबल टू पब्लिश। दैट केस वाज यस्टरडे इन द कोर्ट एंड देयर दे टुक टाइम which was granted up to 15th of December, and the matter has been fixed on 11th of November, 11th of January. Now the question arises, same material is sub judice before Bombay High Court in the civil suit, where all persons including Sameer Ahluwalia and this gentleman Sudhir Chaudhary have filed their affidavits giving their version of the things. Now it is neither coincidence nor accident that on 22nd October an FIR is registered, and I am leaving for all of you to judge. 2nd October FIR is registered, nothing happens, investigations are carried, people are called. 25th of November a case is filed in Bombay High Court. On 25th October, on the same date a press conference is held here in Delhi, where those CDs are distributed, because the case is likely to come thereafter on 25th. Now that case gets lingered on because they are asked to answer certain questions which was fixed for yesterday, and in that time, timed with design, these two persons are called when today is a holiday, and without any new material, I am repeating, without any new material, the persons are arrested. And let me also tell you one more thing. Initially, the FIR has been registered for extortion read with 511, which is called abetment. This attempt means extortion की आपने कोशिश करी। वो कोशिश इन्होंने इस वास्ते लिखी थी, हालांकि वो भी गलत था। 384 read with 511 is the offense that they made out, which ordinarily could not have been there, because even if we go what forensic experts say that the conversation is correct. Just let me complete. I have not completed that, ma'am. Give me 1 second. I want to give you the... Can I have one question at a time? बताइए। जनता का भी हित हो रहा था, लेकिन जवाहर गोयल जी अपने किसी रिश्तेदार या रिश्तेदार के रिश्तेदार से मिलते हैं, उनकी माता जी से मिलते हैं, तो क्या उस आधार पर उन्होंने आपके एडिटर्स को और आपको कह दिया कि रोक दिया जाए, और जो
से मना किया जिसमें आपको लगता था कि जनता का हित है, आपके दर्शकों का हित है, मीडिया का हित है, और चूंकि आज मुद्दा बना रहे हैं आपकी मीडिया पे हमला 65 साल के भारत के इतिहास में दूसरी बार ऐसा किया गया है, तो क्या आपको लगा वाकई जो आप कह रहे हैं कि आपके एक डायरेक्टर के रिश्तेदार की माता ने जो कहा उससे मीडिया का हिस्सा होता है, या फिर हाईकोर्ट ने जो मना किया आपको उससे और आपके दर्शकों के जो हित है उसको आपका? देखिए, मैं इसका इस तरह जवाब देता हूं कि जहां तक कि यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है जवाहर गोयल का, मुझे नहीं मालूम वो जवाहर गोयल जी जवाब देंगे। आई एम अ लॉयर, आई एम नॉट पार्ट ऑफ जी ग्रुप। लेट मी कंप्लीट माय डियर, लेट मी कंप्लीट, कैन आई कंप्लीट? अब रही आपकी बात का जवाब कि उन्होंने हाँ, मैंने नहीं लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट, बट लेट मी कंप्लीट। आपकी बात का जवाब देता हूं मैं। आपने फरमाया जवाहर गोयल जी को माता जी ने बोला, इमोशनली बोला या किस वजह से बोला, तब उन्होंने बंद किया। हाँ, मैंने भी पढ़ लिया है, और हाईकोर्ट ने बोला तब भी बंद हुआ, दोनों सूरतों में बंद हुआ। तो आपका ये कहना है कि आपने जब तब बंद किया तो क्या वो ठीक था? अब कह रहे हो आप मीडिया पे हमला, यही क्वेश्चन है आपका। उसका मैं ये जवाब देता हूं, वन ऑफ द कंटेंशंस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द कंप्लेनेंट इज that since negotiations were going on, there was no telecast between this period. Now this is nowhere in the complaint. It appears to me probably because of that to justify. मीडिया से रिलेटेड जो सवाल खड़ा किया गया है, I think better we have what better. I would request everybody, जो मेरे से डायरेक्टेड क्वेश्चन है आप जरूर पूछें, लेकिन एक एक करके पूछें, मेरी इल्तिजा रिक्वेस्ट होगी आपसे। जवाब दे रहे हैं कि अदालत को पुलिस को दे सकते हैं, मगर यहाँ पे मुद्दा आलोक जी ने उठाया है कि मीडिया पे हमला है, तो मैं एक हाउस के रिप्रेजेंटेटिव के नाते आलोक जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हम अभी भी माने इसको मीडिया पे हमला है, जबकि आपने खुद लिखित में दिया है कि आपने तब रोक दिया जब आपके एक कैरेक्टर के रिलेटिव की माता जी आपकी अगर आप स्टेटमेंट ठीक से देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जवाहर गोयल ने हमारे एडिटर से रिक्वेस्ट किया कि उसको रोक दें और नवीन जिंदल जी से मिलके उनका वर्जन लें, और उसके बाद मैंने फिर ये भी इलैबोरेट किया है कि हमने बहुत अटेम्प्ट्स किए उनका वर्जन लेने के, लेकिन वो वर्जन नहीं मिला। तो आपको सिर्फ एक लाइन पढ़ के जब मुद्दा उठा गया, अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़े तो पूरा क्लैरिफिकेशन उसमें मेरी स्टेटमेंट में दिया हुआ। आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम लोग एक्सपोज करना चाह रहे थे कि किस तरीके से ब्राइब की जा रही है तो इसको रोकने के लिए, फिर आप लोगों ने खुद स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं किया? आप लोगों की क्या प्रूफ है? दूसरा सवाल मेरा, आप लोगों ने कुछ पॉलिटिशियंस और सीएम्स के नाम लिए उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा था कि इस खबर को रोक दिया जाए, इसके आपके पास क्या सबूत है? और ये बातें अगर पहले से हो रही थी तो इसका खुलासा आप आज क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया कि सीएम छत्तीसगढ़, सीएम झारखंड, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आप पे कह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए खबर को? क्योंकि अरेस्ट हो गया। मतलब आप बताइए, अगर इलीगली अरेस्ट लिया जाए किसी को तो हम और तथ्य लेकर आएंगे सामने, और बाकी जहां तक कुछ प्रूफ वगैरह की बात है वो हम अप्रोप्रिएट टाइम पे लीगल कोर्ट्स में प्रेजेंट करेंगे। लालू जी वकील है सर, प्राइम एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन के डेट को दिए गए हैं, फॉरेंसिक लैब ने उसे स्वीकृत किया है, टाइम लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप खुद जानते हैं वकील सीनियर वकील है, कैसे आप ये कह रहे हैं कि लीगल अरेस्ट हुआ है? उसको बता दें कैसे आप लीगल अरेस्ट? देखिए, अगर आप सारा टेक्स्ट देख लीजिए सर ये रिपीट नहीं, आप 3 पॉइंट बताइए कि जो आपके फेवर में हो। मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए, अगर आपने वो सारा टेक्स्ट पढ़ा है तो क्या किसी सूरत में कोई पैसा दिया गया है? नंबर 1। और अगर पैसा नहीं दिया गया तो आप इसको कैसे एक्सटॉर्शन करेंगे? आई एम आंसरिंग नाउ सिंस आई हैव बीन आस्क्ड एज अ लीगल इशू। जब तक किसी चीज का आपने मेरे को लास्ट टाइम ही नहीं बोलने दिया, जब लास्ट टाइम मैं अर्ज कर रहा था, इन्होंने तभी क्राइम ब्रांच ने 511 लगाई थी जिसका अटेम्प्ट है, और एक्सटॉर्शन का मतलब है किसी को फेयर में डालें और उससे कोई प्रॉपर्टी लें। ये तो एडमिटेड केस है, यहां पे कोई प्रॉपर्टी का आदान प्रदान हुआ ही नहीं है, सिर्फ बातचीत हुई है।
और अगर बातचीत में अरेस्ट 2 तारीख को नहीं बनती थी जब एफआईआर हुई, तो 27 तारीख को कहां से अरेस्ट बनती है? जब इन्होंने खुद बोला कि हाँ हम गए, हमने बातचीत की और ये बातचीत हुई है, लेकिन फैक्ट ये है, ये आपको भी पता है, सबको पता, और ये कंप्लेंट का केस है, कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। पहली लैंग्वेज बोल रही है सर, 383 की पहली लैंग्वेज बोल रही है। क्या बोल रही है? ये देखिए पूरा 383 मैं आपको सामने अगर कह रहे तो मैं पूरा पढ़ के दिखा, लेकिन केवल अटेम्प्ट भर तो है, तो पुलिस नहीं, नहीं पुलिस कह रही है आज, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं। अटेम्प्ट तब होती जब आगे वो पैसे लेके आते या तब वो स्टिंग ऑपरेशन करते। नंबर 1, आज की तारीख में मुझे ये बोला गया है सुबह, ये आप लोग कंफर्म करेंगे, बट मुझे जो बोला गया है, उनको अरेस्ट किया है 384 रेड विद 120B, which is absolutely different from for which the FIR was registered, because they realized that they could not have made 384. दूसरी चीज सुन लीजिए आप, अगर मैं उनकी बात पे भी चलूं, एफआईआर बनती है, जो मेरा पर्सपेक्टिव लीगल है इसमें, 384 इन्होंने एफआईआर लगाई, 384 रेड विद 511, 384 टॉक्स ऑफ एक्सटॉर्शन, 511 टॉक्स ऑफ अटेम्प्ट। लेकिन जिस किसी केस में इंडियन पीनल कोड में अटेम्प्ट का अलग एक ऑफेंस है, वो 385 है। अगर मैं उनकी बात पे ही चलता हूं, तो कायदे से इनको 384, 385 लगानी चाहिए, और अगर 385 लगा तो वो क्यों नहीं लगाई? दैट इज बाय डिजाइन, बिकॉज 385 इज अ बेलेबल ऑफेंस, while as 384 is a non-bailable offense. So that is the whole case. Will, as a lawyer, I say, I have given you my content. As I said, the matter is subject. They have put now 384 read with 120B. They have taken out 511 only because this was misconceived at the beginning. Now what the court, they will be produced in the court. According to me, no arrest is required in a case. That is the law what has been laid down by the courts, which I am not telling of mine. It's the law laid down as back as now recently, that whenever there is required a custodial interrogation, then only you should resort to arrest and not otherwise. Now I put a question to myself and for your deliberation. The FIR is registered on 2nd of October. Since 2nd of October till yesterday, they were at the bell and call of crime branch. Now what different happened on 27th that they were required to be arrested when all material has been given to them? This is for your kind consideration. In normal course, there could not have been arrest in this case. Let me tell you that. Because there is no connection between the investigation and the arrest. आप स्टेटमेंट पढ़ ले तो उसमें साफ लिखा है, स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि रिक्वेस्ट की गई, हमारी स्टेटमेंट लिखा है कि रिक्वेस्ट की गई थी। मैंने आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट की। देखिए, आप मेरे को आज बोल रहे हैं वो कंक्लूजन करना जो कोर्ट ने चार्जशीट और तत्वों के बेस पे करना है। प्राइमा फेसी मेरे हिसाब से नहीं बनता, लेकिन ये मेरा तत्व है। मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। आज की तारीख में ये कंक्लूजन नहीं दे सकता, लेकिन जो मटेरियल मेरे को पता है उस हिसाब से ये केस नहीं बनता। व्हाट इज CFSL रिपोर्ट? नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। आप CFSL रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं आपको। उन्होंने उसकी बनाई वो सीडी और वो पुलिस को दे दी। दैट मीन्स एक रिपोर्ट बनी और उस पर पहले स्टिंग ऑपरेशन हुआ अकॉर्डिंग टू देम, उसकी एक सीडी बनी और उस सीडी को दिया गया पुलिस को। अगर वो सच है, ओरिजिनल उनको दिया, तो जो आपको 25 अक्टूबर को 14 मिनट की सीडी दिए वो कहां से निकल आई? दैट मीन्स द ओरिजिनल हैड बीन यूज्ड समवेयर for making further copies. Now what has been given is a copy.
The point which I am trying to make, let us not jump the gun. CFSL की रिपोर्ट है on the basis that is a corroborative evidence of an expert.